Hello everyone, I hope you all doing good. So let's begin our yesterday chapter, that is the amino acids. We have started with the protein and discussed about the classification and its functions, right? So on the basis of the various functions, the structure, the configuration, right? The classification is depend on the amino acids. Let's discuss in their further lectures, right? So first of all, the amino acids classified based on the structures means the aliphatic side chain might be there would be a hydroxyl group of on the amino acids, the sulfur group on the amino acids, acetic amino acids, and their amide group might be present, right? Basic amino acids, or might be it is a complex amino acids. It may be present in the shape of some rings. So aromatic amino acids might be. So this the little bit part we already have discussed in our previous lecture. You can listen that video also to continue the to understand or to continue this further lecture, right? So move on the next slide. That is on the basis of the aliphatic chain. Aliphatic chain means a long straight chain, right? So as earlier we have discussed that on your every protein structure there will be a amine group, which also we have discussed the zwitter ions, right? The carboxyl group, right? There would be present the amine group, the carboxyl group, and these all are connected by your alpha carbon. Clear? So on the basis of the aliphatic side chain, your amino acids are classified. Here we will see the glycine. The glycine structure is this. The methyl group is on the alpha carbon, there is a amine group, and on the side chain there is a carboxyl group which is present as a negative ion, right? This negative or the positive ions makes and maintain the pH of your each and every amino acids, right? सो होता क्या है, जितने भी आपके मोनो अमाइनो होंगे, मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होंगे, ठीक है, उस ग्रुप पे सिंपल अमाइनो एसिड्स होंगे वो, ठीक है। सिंपल अमाइनो एसिड्स कौन से होंगे, जिन पे मोनो अमाइनो ग्रुप होगा, मतलब सिंगल सिर्फ अमाइन ग्रुप होगा एंड सिंगल कार्बोक्सिल ग्रुप होगा, दैट वुड बी योर जो आपके सिंपल अमाइनो एसिड्स होंगे। हियर यू कैन सी द ग्लाइसिन इज वेरी सिंपल अमाइनो एसिड्स, एलानिन, वैलिन, ल्यूसिन एंड आइसोल्यूसिन, राइट? जो लास्ट के आपके 3 अमाइनो एसिड है, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन एंड वेलिन, उनका एक ब्रांच स्ट्रक्चर है। हियर आई कैन शो यू, दिस इज योर valine, leucine and isoleucine. There is your branch structure, there is a branch chain, right? The rest of group is remain same, but a few 2 carbons are added on with your alpha carbon, right? So that here is your amine group present, there is a carboxyl group present, but the chain is gets elonged, right? The 1 carbon, there are the 2 methyl groups another attached with your alpha carbon. Clear, right? So these are the 3 amino acids which you need to be remember when the amino acids are getting in the branch chains, and what would be their structure, right? So here is the hydroxyl group containing amino acids. Now what are the amino acids which are having the hydroxyl group? अभी क्या होता है कि जो हमारे सिंपल थे, ठीक है, जो सिंपल स्ट्रक्चर था वो चेन एलिफेटिक रिंग वाला स्ट्रक्चर था, जो एक स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर था, उस पे सिर्फ क्या था, मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट था, कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट था, एंड आपका सिंपल अमाइन ग्रुप प्रेजेंट था। देयर वुड बी 3 थिंग्स व्हिच आर प्रेजेंट ऑन योर सिंपल लॉन्ग चेन अमाइनो एसिड्स, राइट? सो अब थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, ठीक है। कॉम्प्लेक्सिटी कैसे आएगी कि आपके हाइड्रोक्सिल ग्रुप की एडिशन की वजह से अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर है जो वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, एंड उसका फंक्शन भी डेफिनेटली जहां जहां हम डिफरेंट जो फंक्शंस है इसके वो डिस्कस करेंगे इन अवर फर्दर लेक्चर्स, बट नाउ यू नीड टू बी अंडरस्टैंड हाउ द अमाइनो एसिड्स आर differentiate and how they are classified on the basis of their structure, right? Only need to think about the structures. You have to be keep in your mind that what are the how the structures are getting changed, what are the functional groups are adding on it, ठीक है? तो वो उस चीज को understand करने के लिए you must remember the names of the each and every amino acid, right? So here are your 3 amino acids.
ठीक है, serine, threonine and tyrosine, STT, serine, threonine, and tyrosine, which are having the hydroxyl group at their again alpha carbon attached with your amine group. This structure will remain again same, only the another carbon which is attached to your alpha carbon is having the hydroxyl group. Clear to everyone? Right? So next is your threonine. You can see the structure is getting again complexed, a bit complexed. ठीक है, तो वहां पे दो मिथाइल ग्रुप्स अटैच है बट हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, रेस्ट ऑफ रिमेन स्ट्रक्चर विल रिमेन सेम। टायरोसिन का एक एरोमेटिक रिंग स्ट्रक्चर होता है, वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। अभी क्या है, पहले बिल्कुल सिंपल चेन था, उसके बाद सेरीन, थ्रियोनिन एंड आपके टायरोसिन पे क्या आ गया, हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हो गया। अब क्या है, और एडिशन होगा, सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स आ जाएंगे। सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स क्या है कि सल्फर ग्रुप प्रेजेंट होगा, सिंपल एज दैट। तो वो जो सिस्टीन है, ठीक है, मिथुनिन है, सिस बोलते हैं, मिथ, ये इसके शॉर्ट नेम्स है, सिस, मेथोनिन, मेट। ठीक है, तो इसके स्ट्रक्चर्स पे जब सल्फर आ जाएगा, जहां फिर सल्फाइड बॉन्ड्स आ जाएंगे, थायो ईथर बॉन्ड आ जाएंगे, ठीक है, जो सल्फर कंटेनिंग ग्रुप्स होते हैं वो अटैच हो जाएंगे समहाउ। वो अल्फा कार्बन के साथ वाली कार्बन पे अटैच है, या फिर एक अनदर कार्बन अटैच है, अगर अनदर मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, कोई भी आपका इल्काइल ग्रुप हो सकता है, ठीक है, उसके साथ अटैच है। तो इट डिपेंड्स ऑन द structure of it depend on the specific amino acid, right? Here you can see only the simple thionyl sulfur group attached with the आपकी जो कॉम्प्लेक्स है अमाइनो एसिड का, उसके साथ आके सल्फर ग्रुप अटैच हो गया, तो सिस्टीन बन गया, उसके सिस्टेनिन बन गया, सिस्टेन का सेम ही है, तो उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स हो गया। हियर यू कैन सी टू सल्फाइड बॉन्ड, ये डाइसल्फाइड लिंकेज हो गई, ठीक है, दो आपके अमाइन ग्रुप आ जाएंगे। मेथोनिन का फिर अगेन थोड़ा सा सिंपल ही है कि मिथाइल ग्रुप अटैच है एंड एस सल्फर बॉन्ड है, तो थायो ईथर बॉन्ड बन रहा है। क्लियर? लेट्स मूव टू नेक्स्ट। अभी क्या होता है कि एसिडिक अमाइनो एसिड्स भी होते हैं, ठीक है, एंड देयर अमाइड्स, वी विल गोना डिस्कस दैट। जिसपे क्या है कि एक तो इस पे कोई भी स्पार्टिक हो गया या ग्लूटामिक एसिड हो गया, इन पे क्या है कि डाइकार्बोक्सिलिक मोनोमाइन एसिड्स होते हैं, जो कि जहां, जबकि जो आपका एस्पायरजिन है, ग्लूटामिन है, दे आर अमाइड डेरिवेटिव्स होते हैं। यहाँ स्ट्रक्चर वाइज आप अंडरस्टैंड करेंगे, देन यू विल गेट इजिली टू अंडरस्टैंड कि हो क्या रहा है। एस्पार्टिक एसिड है, ठीक है, कार्बोक्सिल ग्रुप यहाँ पे भी है, कार्बोक्सिल ग्रुप ऑन द लेफ्ट साइड टर्मिनेटर साइड पे भी है, ये अल्फा चेन है, ये बीटा, बीटा कार्बन पे भी है, ये अमाइन ग्रुप, ये तो स्ट्रक्चर रिमेन, इट वुड बी सेम, ठीक है, ये तो स्ट्रक्चर रहेगा ही रहेगा बिकॉज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो ग्रुप है। तो ये अटैच हो गया बीटा कार्बन पे एक और कार्बोक्सिल ग्रुप, ठीक है, तो ये बन गया बीटा कार्बोक्साइल, राइट। एस्पार्टिक समझ आ गया, एस्पार्टिक एसिड, उसके बाद एस्पायरजन। एस्पायरजन में क्या हो रहा है कि आपके दो, एक तो ये अमाइनो एसिड का बेसिक स्ट्रक्चर, उसके साथ है CH2C डबल बॉन्ड O, ये कार्बोक्सिल ग्रुप ऐसे, एंड अनदर अमाइन ग्रुप प्रेजेंट है, अमाइड ग्रुप जिसे बोलते हैं, ये सारे के स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, अमाइड। अभी ग्लूटामिक एसिड में क्या हो रहा है, ग्लूटामिक एसिड में अल्फा बीटा गामा, गामा पे जाके क्या है, कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है, वो क्या है, अल्फा गामा कार्बोक्सिल, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द गामा कार्बोक्सिल, ठीक है। देन आपका आ गया ग्लूटामिन। ग्लूटामाइन में क्या होता है कि यहाँ पे अमाइड ग्रुप तो प्रेजेंट रहेगा ही रहेगा, नेक्स्ट पे आपका अमाइड ग्रुप भी है, ठीक है, उसके साथ C डबल बॉन्ड O के साथ लास्ट आपका अमाइड ग्रुप प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अमाइड। अब इसे भी अमाइड बोल रहे थे, दिस इज ऑल्सो अमाइड, ठीक है। So यहाँ तक कोई issue, then please mention everything in the comment section. If you have any query, I will clear out your doubts. Move to next. Basic amino acid अब कौन से होते हैं? That are your lysine, arginine, histidine. अमाइनो एसिड्स हैं जो कि एज अ बेसिक अमाइनो एसिड्स काम करते हैं, लाइसिन, आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन, दे द डाइबेसिक कार्बोक्सिलिक मोनो एसिड्स होते हैं, मतलब बेसिक कंपाउंड्स इन पे दोनों कार्बन पे होता है। हियर आई विल शो यू लाइसिन। अभी क्या है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा एंड एप्सिलॉन, ठीक है, तो ये चीजें हैं जहां पे एंड पे आपको सेम अमाइनो ग्रुप मिलेगा, ठीक है, लॉन्ग चेन बन गई, बट इतने कितनी कार्बन से अल्फा चेन के साथ कंटिन्यू हो रही, 1 2 3 4,
फोर्थ कार्बन पे आपके है अमाइन ग्रुप अगेन। क्लियर? दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द दिस अमाइनो। आर्जिनिन में क्या हो रहा है कि आर्जिनिन में भी दो अमाइन ग्रुप्स लगे होंगे आपके 1 2 3 थर्ड कार्बन पे, 1 2, दिस इज अनदर 3। ठीक है, उसके बाद हिस्टिडाइन में क्या है? हिस्टिडाइन में एक आपको पेंटावेलेट स्ट्रक्चर दिखेगा, अगेन इस पे भी कार्बन्स लगे हुए हैं, अमाइन ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसका नाम है अमिडाजोल। वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर फॉर फर्दर टू अंडरस्टैंड सम रिएक्शंस। यहां तक क्लियर? नाउ मूव टू द एरोमेटिक। एरोमेटिक का भी रिंग स्ट्रक्चर स्टार्ट होंगे। एरोमेटिक जो कंपाउंड्स होते हैं ये आपको फिनाइल में मिलेगा, टायरोसिन में मिलेगा, ट्रिप्टोफेन में मिलेगा। ठीक है, इन सबका इंडोल रिंग रहता है। ठीक है, जिससे जो दैट्स व्हाई जो हिस्टिडिन था वो इसी कैटेगरी का आप बोल सकते हो, क्योंकि पेंटावेलेंट दिखाया हुआ है। तो यहाँ पे with this benzene ring, so it is called the benzene or phenyl, right? That's why it is called the phenylalanine. Now what happened in the tyrosine? The hydroxyl group is present in your benzene ring as well as your the rest of your phenylalanine group, right? So that's why it is called, because due to this alcoholic group it is called the phenol. What is happening in the tyrosine? Tryptophan, the benzene group plus the pentavalent, which is the same ring of the histidine, right? So again the basic amino group ring is attached to this, so this is group is called the indole. Clear? Move to your next slide, that is the amino acids. The proline containing pyrrolidine ring is a unique amino acids. ठीक है, इस पे भी ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि अमाइनो ग्रुप क्या है। सो इट इज एंड द अमाइन ग्रुप NH, डबल बॉन्ड NH होगा। ये स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड कीजिए। ठीक है, तो ये बाकी अमाइनो एसिड्स में भी पाया जाता है, ये NH2 ग्रुप भी पाया जाता है, बट यहाँ पे अल्फा अमाइनो एसिड्स होगा, अमीनो एसिड्स होगा। सो व्हाट इज हैपनिंग इन द प्रोलिन? प्रोलिन इज द ओनली जो आपका अमाइनो एसिड है जिसपे क्या है कि डबल बॉन्ड NH एंड NH2 प्रेजेंट होंगे। Here you can see pentavalent structure, the basic amine group structure. Here is your this ring present. ठीक है, ये पेंटावेलेंट कुछ इस तरह से भी दिखता है। सो पायरोलिडिन बन गया ये। क्लियर? मूव टू नेक्स्ट स्लाइड, द बेसिक क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द पोलैरिटी। अभी पोलैरिटी के को ध्यान में रखते हुए जो अमाइनो एसिड्स की क्लासिफिकेशन होती है वो कौन सी है। ठीक है, अभी अभी एक चीज अंडरस्टैंड करना कि आपकी जितनी भी मेम्ब्रेन है सेल में, बॉडी में जितने भी सेल्स हैं उस पे एक सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, वो एक तरह से दो फंक्शंस हमने पढ़े थे सेल मेम्ब्रेन जब हम यूनिट ऑफ सेल कर रहे थे, कि सेल्स के जो होती हैं उस पे ग्लाइकोलिपिड्स, बहुत सारे और प्रोटीन्स, ठीक है, इम्बेडेड होती हैं। ठीक है, आपके जो भी फैट्स हैं, लिपिड्स हैं, वो कंटेंट क्या रहता है, वो तरह से एक तरह से वो चार्ज्ड कंटेंट है। ठीक है, जो कि सेल की परमेबिलिटी एंड इम्परमेबिलिटी को मेंटेन करके रखता है। उस पे अभी बहुत सारे अल्काइल ग्रुप्स भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो होता क्या है कि ये सारी चीजें कंट्रोल रहती हैं आपके स्पेसिफिक अमाइनो एसिड्स की वजह से। ठीक है, कि कौन सी चीज एंटर होनी है, कब कौन सी चीज ने इन्फ्लेक्स करना है, इफ्लेक्स करना है। ठीक है, तो वो सारी चीजें पोलैरिटी बेसिक्स जो आपके अमाइनो एसिड्स होते हैं तो उन पे उनकी स्ट्रक्चर पे डिपेंड करती है। अभी क्या नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स होते हैं। ठीक है, अभी जहाँ फॉबिक आ गया वो भी चीज मैंने बताई थी, एक फॉबिक होता है एक फिलिक होता है। जब हमने लिपिड बाइलेयर की थी तो वहां देखा था हेड आपके हाइड्रोफोबिक थे, हाइड्रोफिलिक थी आपकी टेल थी। ठीक है, तो वो होता क्या है कि जो फोबिक मींस वाटर हेटिंग एंड फिलिक मींस वाटर लविंग। तो सारे अमाइनो एसिड्स होते हैं जो वाइट। ठीक है, पोलर अमाइनो एसिड्स होते हैं जिसपे कोई चार्ज नहीं रहता अल्काइल ग्रुप पे। ठीक है, आपके पोलर अमाइनो एसिड विद पॉजिटिव आर ग्रुप, मतलब कोई ना कोई चार्ज रहेगा, वो पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड होंगे, कुछ नेगेटिवली अमाइनो एसिड चार्ज रहेंगे। ठीक है, सो जो नेक्स्ट आपका आ गया कि जो नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स हैं, नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स कौन से होंगे, जो वाटर हेटिंग है, जो मैंने फोबिक बोला वाटर हेटिंग होंगे, वो एलानिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, वैलिन, मिथोनिन, फिनाइलएलानिन, ट्रिप्टोफेन एंड प्रोलिन।
ठीक है। जो पोलर अमाइनो एसिड्स होंगे, कुछ के नाम आपको याद रखने पड़ेंगे, बिकॉज इट दीज आर द इम्पोर्टेंट नेम्स यू मस्ट बी रिमेम्बर, राइट। सो इन पे क्या होता है कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप रहेगा, सल्फाहाइड्रल ग्रुप रहेगा, एक अमाइड ग्रुप रहेगा, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहेगी इस इन ऐसे प्रोटीन स्ट्रक्चर्स में, ठीक है। जो आपके सिंपल ग्लाइसिन हमने रीड किया था, ऊपर स्ट्रक्चर देखा था ना, सिंपल जो चेन साइड चेन स्ट्रक्चर था। अब आर के साथ एच बॉन्ड रहेगा, इज ऑल्सो इन द फॉल इन दिस कैटेगरी। जो पोलर अमाइनो एसिड्स हैं, किसी भी चार्ज, किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं है। सिंपल अमाइनो एसिड पे कौन सा चार्ज था, हमने देखा ना ऊपर अभी स्ट्रक्चर्स किए, तो वहां पे नहीं था। सेरेन हो गया, थ्रेनिन हो गया, सिस्टीन हो गया, ग्लूटामिन हो गया, स्पार्जिन हो गया, टायरोसिन हो गया, ठीक है। दीज आर द वेरी सिंपल विच इज डोंट हैव एनी चार्ज। सो जो आर पॉजिटिव चार्ज होते हैं, जो आपके एल्काइल ग्रुप है वो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, वो अमाइनो एसिड्स कौन से हैं? लाइसिन, आर्जिनिन, हिस्टिडिन, इंक्लूडिंग इन दिस ग्रुप। अभी पोलर नेगेटिव जो ग्रुप है वो क्या होगा? अभी जो नेगेटिव है वो स्पार्टिक एसिड हो गया, ग्लूटामिक एसिड हो गया, ठीक है। तो इनका पीएच भी 6 to 7 वेरी करेगा, राइट। एंड जो आपकी न्यूट्रिशनल वैल्यू पे जो डिपेंड करता है कि कितनी जो हमारी बॉडी के लिए नेसेसरी होते हैं, असेंशियल होते हैं, ठीक है, वो उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू दो चीजों पे डिपेंड, जो न्यूट्रिशन वैल्यू के क्लासिफाइड किए जाते हैं अमाइनो एसिड्स, वो दो तरह के होते हैं, एक असेंशियल होते हैं, एक नॉन असेंशियल होते हैं, ठीक है। तो जो असेंशियल होते हैं ना अमाइनो एसिड्स, ये बॉडी अपनी सिंथेसाइज नहीं करती, ठीक है। असेंशियल या इंडिस्पेंसिबल अमाइनो एसिड्स होते हैं जो बॉडी खुद सिंथेसाइज नहीं करती, दे माइट बी नीड टू सप्लाई फ्रॉम आउटसाइड, वी ऑल जो हम डाइट के थ्रू लेते हैं, ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। these are very important for our growth, the maintenance of our health, ठीक है। तो ये लिस्टेड है 10। 10 कौन कौन से? आर्जिनिन, वालिन, हिस्टिडिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मेथियोनिन, phenylalanine, threonine, and tryptophan. These are the 10 very important essential amino acids which are we generally take from outside from by our diet, so our body doesn't synthesize in it to these amino acids, right? So जो basically क्या होता है, नॉन एसेंशियल अभी आगे, नॉन एसेंशियल भी आगे 10 ही है, टोटल 20 अमाइनो एसिड्स अभी तक हमने डिस्कस किए। तो उनमें से जो नॉन अमाइनो एसिड्स है, जो बॉडी सिंथेसाइज करती है बायोलॉजिकल नीड्स की डिपेंड पे, ठीक है, उसकी रिक्वायरमेंट पे, ये हम डाइट के थ्रू कंज्यूम नहीं करते, ये बॉडी खुद सिंथेसाइज करती है। ग्लाइसिन, एलानिन, सेवेरिन, सिस्टीन, एस्पार्टेट, एस्पाराजिन, ग्लूटामेट, ग्लूटामिन, टायरोसिन एंड प्रोलिन, राइट। अभी क्या है, जो अमाइनो एसिड्स हैं वो मेटाबॉलिक फेट से हमें कैसे मिलते हैं, ठीक है। मेटाबॉलिक फेट, मैंने एक चीज, जब मैंने आप मेरे बायोकेमिस्ट्री के जो बाकी लेक्चर्स हैं उन्हें सुनोगे, जब मैंने क्लासिफिकेशन स्टार्ट की, जब हमने बायोमोलिक्यूल्स को अंडरस्टैंड करना स्टार्ट किया था, जब हमने स्टार्टअप किया था बायोकेमिस्ट्री का, तब मैंने बोला था कि एवरी फेट, एवरी अमाइनो एसिड, every enzyme, everything in the body, in the cells are interlinked with each other somehow, somewhere it get connected at some point. सो प्रोटीन्स का भी वही हाल है, जब हम किसी भी प्रिकर्सर्स की हम मेटाबॉलिज्म करते हैं, राइट, तो अल्टीमेटली जो हमें प्रोडक्ट मिलता है, जहाँ फिर इन बिटवीन इंटरमीडिएट्स मिलते हैं, तो वो समहाउ दे आर यूजिंग समवेयर, राइट। वो कभी किसी के टीसी साइकिल में जैसे यूज हो रहा था ऑक्सैलो एसीटेट, जब हम ग्लूकोज नियोजेनेसिस कर रहे थे, तो वो सारी चीजें आपस में लिंक्ड रहती हैं, ठीक है। तो बॉडी में रेंडमली कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। रेंडमली द बॉडी इज नॉट वर्किंग, एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड, देयर इज अ वेब which is interconnected to each other, right? So here we are discussing the same thing, that from the metabolic fate we also get the amino acids. Some classification is also depend on the different metabolic fate. So what is happening here, जो आपका कार्बन स्केलेटन है, जो अमाइनो एसिड्स है, उसका प्रिकर्सर जिससे ग्लूकोज है, ठीक है। अभी ग्लूकोज में क्या हो रहा है कि ग्लाइकोजेनिक पाथवे से और कीटोजेनिक पाथवे से, और दोनों से अमाइनो एसिड्स की फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। ये तीन ग्रुप से होती है, एक तो ग्लाइकोजेनिक अमाइनो एसिड्स होते हैं, ग्लाइकोजेनिक अमाइनो एसिड जो ग्लूकोज को एज अ प्रिकर्सर मान के उसके ब्रेक डाउन करवाते हैं, जैसे कि एलानिन, एस्पार्टेट, ग्लाइसिन, मेथियोनिन। अभी कीटोजेनिक ग्रुप कौन से होते हैं? जो फैट सिंथेसाइज करता है इन अमाइनो एसिड्स के थ्रू बनता है, ठीक है। फैट सिंथेसाइज होता है इन अमाइनो एसिड के, दो अमाइनो एसिड्स हैं जिनके थ्रू फैट सिंथेसाइज हो रहा है, वो है आपके ल्यूसिन एंड लाइसिन, ठीक है। एक्सक्लूसिवली कीटोजेनिक कंपाउंड्स हैं। अभी बोथ ग्लाइकोजेनिक एंड कीटोजेनिक जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो आइसोल्यूसिन होते हैं, फिनाइलएलानिन, ट्रिप्टोफैन, ठीक है। ये सिंथेसिस करते हैं ग्लूकोज एज वेल,
फैट से भी सिंथेसिस हो रहे हैं, ये ग्लूकोज से भी हो रहे हैं। क्लियर? उसके बाद आ गया वेरी इंपॉर्टेंट सेलिनोसिस्टीन, द 21st अमाइनो एसिड्स। ऑलरेडी वी हैव स्टेटेड द 20 अमाइनो एसिड्स एसेंशियल नॉन एसेंशियल कैटेगरी में, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ हमने डिफरेंट क्लासिफिकेशन उसकी देख ली, ठीक है, स्ट्रक्चर की वाइज देख लिया, उसका मेटाबॉलिक फेट के थ्रू हमने क्लासिफिकेशन देख ली। अब क्या है, ये 21st जो सेलिनोसिस्टीन है ये एडेड किया गया है। ये आपकी कहाँ एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम्स पे प्रेजेंट था, ठीक है। प्रोटीन्स जो स्लिनो प्रोटीन्स थी वहां पे प्रेजेंट था, ठीक है। जो एग्जाम्पल के तौर पे हम इसे अंडरस्टैंड करने के लिए, ग्लूटाथाइन पर ऑक्सीडेज, वहां पे ये प्रेजेंट होता है। ग्लाइसिन रिडक्टेस जो एंजाइम्स हैं बेसिकली, उनकी एक्टिव साइट्स पे ये प्रेजेंट रहता है। 5-डिओडाइनेस थ्रियो थायोरिडॉक्सिन रिडक्टेस सिलिनोसिस्टीन यूजली जो अनयूजुअल अमाइनो एसिड है, जो कि ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं ना, सिलेनियम, कुछ सल्फर एटम्स ऑफ सिस्टीन पे प्रेजेंट होता है, वहां पे ये सेलिनोसिस्टीन पाया जाता है, ठीक है। ये रहा सिस्टीन, हियर इट इज योर सेलिनोसिस्टीन, ठीक है। इनकॉर्पोरेशन ऑफ सेलिनोसिस्टीन इनटू प्रोटीन्स जब होती है, तब ट्रांसलेशन इज कैरिड आउट, ठीक है, बाय कोडॉन, नेमली यूजीए, ठीक है। इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द यूजीए इज नॉर्मली अ स्टॉप कोडॉन एंड टर्मिनेट प्रोटीन बायोसिंथेसिस, रोकता है जो प्रोटीन बायोसिंथेसिस को, ठीक है। यहाँ तक क्लियर, आपके अमाइनो एसिड्स का पार्ट यहाँ क्लियर होता है, ठीक है। क्लासिफिकेशन के साथ वी हैव कंप्लीटेड द प्रोटीन पार्ट। नाउ नेक्स्ट हम कंटिन्यू करेंगे हम प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म, अमाइनो एसिड्स की मेटाबॉलिज्म। क्लियर? थैंक यू वेरी मच।